Dear student, today we are going to discuss about physical properties of aromatic compounds. Yes, aromatic compound का physical property. Here aromatic hydrocarbons, we know first member we are familiar with it is a benzene, which is non-polar by nature. क्यों? कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट रहता है, सो बॉन्ड इज नॉन पोलर. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स and usually colorless liquids or solid. Benzene is a liquid. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिक्विड रहता है और अदरवाइज सॉलिड होगा विथ ए कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा. उसका पर्टिकुलर स्मेल आ रहा है. एरोमा मीन्स स्मेल. इट गिव्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एरोमा. यू आर ऑल्सो फैमिलियर विथ नेप्थलीन. एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. ये वाला नेप्थलीन रहेगा. C10H8 is a naphthalene. This one is naphthalene. Everybody knows naphthalene balls. Yes, this type of balls of naphthalene we are using in our toilets and for preservation of clothes. In our cupboard, we are preserving our clothes from fungus and bacteria because of unique smell of the compound. नेप्थलीन का यूनिक स्मेल आ रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे क्लॉथ प्रिजर्व हो सकते हैं और बैक्टीरिया जर्म्स वो किल कर रहा है ड्यू टू पर्टिकुलर स्मेल इन टॉयलेट एंड इन आवर कपबोर्ड. एंड द moth repellent property. Aromatic hydrocarbons are immiscible with water. अपना water polar रहता है. Water is polar by nature, where aromatic compounds are non-polar. So obviously, aromatic compound is immiscible in the water, but readily miscible with organic solvent. Organic solvent like ether, CCl4, carbon tetrachloride and the ethanol is our non-polar organic solvent where our aromatic hydrocarbon easily dissolves हो जाएगा. मिक्सिबल क्या रहता है? मिक्सअप हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. वाटर में इमिसिबल रहेगा. ये वाला पोलर, ये वाला नॉन पोलर, सो इट डज नॉट dissolves into water, but organic compound में ये वाला miscible रहेगा. They burns with a sooty flame, means on burning it gives fumes, black smoke दे रहा है. They burns with sooty flame. So aromatic compounds when burns in presence of oxygen, so ये black smoke दे रहा है, sooty flames दे रहा है. Here, arenes are characterized by electrophilic substitution reaction. Arenes means aromatic compound like benzene. Here is 3-pi bond, but due to high stability, it gives substitution. यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और कोई ग्रुप लाइक NO2, ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएगा. वो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्टेड होगा और हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और इनकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा. ये वाला सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. However, under special conditions
they can also undergo addition and oxidation. Addition and oxidation reaction of arene we will discuss in our next lecture. Today we will discuss about electrophilic substitution reaction of benzene. Yes, in this lecture we will discuss about इलेक्ट्रोफिलिक क्या रहता है, जो अपना रिंग में पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इनकी ओर ये पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्टेड रहता है. सो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया और हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, उनकी जगह पे वो ऐड हो जाएगा. ये सब्स्टिट्यूशन हो गया. सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या रहता है, एक की जगह पे दूसरा आ रहा है. यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और NO2 ग्रुप अटैच हो रहा है. सो ये वाला सब्स्टिट्यूशन हो गया. इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्टेड पार्ट रहता है, वो इलेक्ट्रोफाइल रहता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्टेड होगा और हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा. सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions. The common electrophilic substitution reaction of arenes are nitration, means हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, NO2 ग्रुप एंटर हो जाएगा. सो ये वाला नाइट्रेशन. हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इनकी जगह पे हेलोजन आ रहा है, सो हेलोजिनेशन दे रहा है. यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और हेलोजन आ जाएगा. तो ये वाला हेलोजिनेशन हो जाएगा. देन सल्फोनेशन, SO3H प्लस पॉजिटिव पार्ट यहाँ आ रहा है, सो ये वाला सल्फोनेशन हो जाएगा. देन फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, मिथाइल इथाइल इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप. यहाँ पे अटैच आ रहा है, so ये वाला alkylation. This reaction is discovered by Fiedel and Kraft combinedly, so which is called Fiedel-Kraft's alkylation. Acylation में क्या रहता है, ये वाला एसाइल ग्रुप रहता है, एसाइल ग्रुप एंटर हो रहा है, so ये एसाइलेशन हो जाएगा. in which attacking reagent is an electrophile. जो अटैक कर रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा. So one by one we are going to discuss about it. So first one is alkylation, no, nitration. Here electrophilic substitution reaction, first one is nitration. Nitration में क्या होता है, addition of NO2 group. ये वाला इलेक्ट्रोफाइल रहेगा. A nitro group is introduced into benzene ring when benzene is heated with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. This reaction is occur at 323 to 333 Kelvin temperature. ये वाला नाइट्रोबेंजीन दे रहा है. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला नाइट्रेटिक मिक्सचर होता है, ये दोनों मिलकर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा है. either HNO3 and sulfuric acid first of all react with each other. This one is our nitro group HNO3. Okay, this one is the sulfuric acid. What happens actually after breaking the bond from here, N plus or minus, देख सकते NO2 प्लस, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो गया. यस, देन आफ्टर यहाँ से H प्लस आ जाएगा, H प्लस विथ OH H2O दे रहा है. देन रिमेनिंग पार्ट इज HSO और माइनस. यहाँ पे
HNO3 is our reagent. Sulfuric acid is your catalyst. So first of all, NO2 plus attacks in benzene ring. Why? ये वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया, यहाँ से NO2 प्लस, देन HSO4 माइनस एंड H प्लस विथ OH, H2 रिमूव हो गया. NO2 प्लस बेंजीन रिंग की ओर अटैक करेगा. यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहता है वो रिप्लेस हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 ये पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है, वो बेंजीन रिंग की ओर यहाँ से जो पाई बॉन्ड कंटिन्यूसली मूविंग आ रहा है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते, इसकी ओर अट्रैक्टेड होगा. एंड ड्यू टू दैट यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा और H प्लस रिप्लेस होगा. उनकी जगह पे NO2 प्लस कंबाइन हो जाएगा. सो ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव कट हो जाएगा. इट गिव्स नाइट्रोबेंजीन. और यहाँ से जो H प्लस रिप्लेस हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ NO2 की वजह से, सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन. ये वाला C6H6 है, इसमें से हाइड्रोजन चला गया, वहाँ पे NO2 अटैच हो गया. सो दिस वन, यहाँ ऑल दी 6 नाइट्रोजन आर सेम. कहीं पे भी हाइड्रोजन की जगह पे NO2 आ सकता है. दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटिंग. ये वाला H प्लस क्या करेगा, जो अपना HSO4 माइनस है इनके साथ कंबाइन हो जाएगा. सो इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है और अपना कैटालिस्ट एज इट इज रिएक्शन के बाद मिल जाएगा. ये ओनली HNO3 कंज्यूम हो रहा है, ये वाला एज ए कैटालिस्ट रह जाएगा. So you can see NO2 is combined there. So benzene react with concentrated. डिटेल में रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, NO2 प्लस फॉर्म होगा, then HSO4 minus and water. So you can see our by product is water here. NO2 यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ कंबाइन हो जाएगा और H2SO4 as it is मिल जाएगा. This is called the nitration of benzene. ये वाला अपना नाइट्रेशन हो गया बेंजीन का. Now second reaction is halogenation. We are adding halogen into benzene ring. Arenes means benzene react with halogen in the presence of Lewis acid like anhydrous. Anhydrous क्या रहता है, without water. वाटर नहीं रहता FeCl3 में, FeBr3 में और AlCl3 में वाटर इज नॉट प्रेजेंट. सो दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस. टू yield हेलोएरिन्स. ये हेलोएरिन दे रहा है, एक्चुअली क्लोरीन AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा. AlCl3 में क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल रहता है, इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट रहता है. लुईस एसिड का मीनिंग रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेनर रहता है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ओर चला जाएगा. सो ये वाला पॉजिटिव बन गया, बस वही तो नीडेड होता है. ये वाला Cl प्लस और इलेक्ट्रोफाइल हो गया. देन इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल आ रहा है वहाँ पे ये क्लोराइड डोनेट कर रहा है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसका एम्प्टी और इसका फील्ड ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है. सो AlCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स दे रहा है. नाउ ये वाला Cl प्लस बेंजीन की ओर अट्रैक्टेड होगा, वाई विच इज इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस कर देगा, AH प्लस और Cl प्लस एंटर हो जाएगा. इसका एम्प्टी ऑर्बिटल
उसका फील्ड ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, सो प्लस माइनस कट हो जाएगा एंड इट गिव्स क्लोरोबेंजीन। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, सो ये वाला क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, अदरवाइज हेलोजिनेशन। यहाँ से जो H प्लस रिमूव हो गया वो ये वाला टेम्पररी कनेक्टेड था उसके साथ जुड़ जाएगा, फिर HCl एज ए बाय प्रोडक्ट दे रहा है एंड एज ए कैटालिस्ट LCl3 फिर से मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। If we are taking here as a catalyst FeCl3, no problem। यहाँ पे FeCl3 as a catalyst, ये वाला भी लुईस एसिड रहेगा, उसका भी वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, सो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। सो यहाँ क्या होगा, Cl2 प्लस FeCl3। ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर रहा है। FeCl3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है। यस, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और उसका जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो फिल हो जाएगा और ये टेम्पररी FeCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बना रहा है। जैसे ही H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा फ्रॉम दी बेंजीन रिंग, वहाँ पे Cl एंटर हो जाएगा। ये वाला H प्लस यहाँ से जो एक्स्ट्रा Cl था उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और HCl बाय प्रोडक्ट देगा और कैटालिस्ट, ये वाला रिएजेंट है, ये वाला कैटालिस्ट, यस इट रिमेन्स एज इट इज लास्ट इन द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद एज इट इज मिल जाएगा। ये वाला क्लोरीनेशन है। नाउ remember chlorination and bromination। Chlorination and bromination is possible by this reaction, but fluorination and iodination is not possible by this reaction। When we take benzene, यहाँ पे हेलोजिनेशन आ रहा है, क्लोरीनेशन होगा, ब्रोमिनेशन होगा। We have to take bromine here as a catalyst, FeBr3 and hydrated FeBr3। FeBr3 अपना क्या रहता है, लुईस एसिड रहता है, उसका एक ऑर्बिटल वैकेंट आ रहा है। यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, नॉट होमोलाइटिक बट हेटेरोलाइटिक फिशन हो जाएगा, बस वही तो नीडेड होता है। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ से ब्रोमीन FeBr3 के साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा। ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे कंबाइन होने के बाद कॉम्प्लेक्स FeBr4 माइनस दे देगा और ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, सो ये वाला ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। दिस इज ब्रोमोबेंजीन। ये वाला H प्लस यहाँ से निकला, सब्सटीट्यूट हुआ बाय ब्रोमीन, वो यहाँ पे आ जाएगा और H प्लस और Br के साथ एज ए HBr बाय प्रोडक्ट दे रहा है और FeBr3 एज ए कैटालिस्ट रिमेन्स एज इट इज मिल जाएगा, क्योंकि कैटालिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा है। इन द लास्ट इट रिमेन्स एज इट इज रहेगा। नाउ अंडरस्टूड? In this reaction, fluorination or iodination is not possible because iodine is very huge in size and fluorine is very small in size. So in this reaction, using this method,
fluorination and iodination is not possible. Store in your mind. Now सल्फोनेशन, सल्फोनेशन क्या रहता है? बेंजीन रिंग में SO3H ग्रुप अटैच हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन. रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द बेंजीन रिंग बाय SO3H ग्रुप. Replacement of hydrogen atom by a sulfonic acid group. SO3H group is called sulfonic acid group. A ring is called in a ring is called sulfonation. It is carried out by heating benzene with fuming sulfuric acid. Fuming sulfuric acid क्या रहता है? Actually oleum होता है, H2S2O7, which is mixture of H2SO3 plus सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिक्सचर रहता है. यहाँ पे H2SO4 itself रिएजेंट रहता है और ये वाला एक मॉलिक्यूल behaves like a reagent एंड दूसरा वाला like a कैटालिस्ट बिहेव करता है. ये वाला रिएजेंट और ये वाला कैटालिस्ट. इन द सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट हैपेंस एक्चुअली, यहाँ पे देख सकते ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, यहाँ से OH माइनस जा रहा है, सो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा. OH माइनस रिमूव होगा तो इट गिव्स HSO3H प्लस सल्फोनिक एसिड दे रहा है HSO3 यस प्लस, यहाँ से H प्लस आ जाएगा, सो H प्लस OH के साथ वाटर दे रहा है, सो विच इज बाय प्रोडक्ट. ये वाला HSO4 माइनस रिमेनिंग रहेगा, दिस इज HSO4 माइनस. सो दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल. ये वाला पॉजिटिव पार्ट प्रोड्यूस हो गया, वो बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन्स की ओर अट्रैक्टेड रहेगा. वहां से ये वाला हाइड्रोजन SH प्लस रिप्लेस हो जाएगा, इनकी जगह पे SO3H अटैच हो रहा है, सो ये वाला बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया. देन ये वाला H प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देन H2SO4 एज ए कैटालिस्ट वापस मिल जाएगा. तो एज ए रिएजेंट बिहेव कर रहा था वो कंज्यूम हो जाएगा, जो कैटालिस्ट वाला था वो एज इट इज मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. इन द बेंजीन fuming sulfuric acid at high temperature gives benzene, sulfonic acid and water दे रहा है. Now Fiedel-Crafts alkylation. This reaction is discovered by scientists Fiedel and Crafts, so which is called Fiedel-Crafts alkylation. यहाँ पे बेंजीन में अल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल इथाइल ऐड हो रहा है, सो ये वाला अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, सो विच इज कॉल्ड अल्काइलेशन. NO2 ग्रुप ऐड हो रहा है, सो नाइट्रेशन. SO3H ऐड हो रहा है, सो वो सल्फोनेशन. हेलोजन ऐड हो रहा है, सो हेलोजिनेशन. लाइक दिस alkyl group is added in the benzene ring, so alkylation. This reaction discovered, so this is also called FC reaction. In short, F means Fiedel, C means Crafts. FC reaction also. This is called FC reaction. When benzene is treated with an alkyl halide, ये वाला alkyl halide है, actually methyl chloride is alkyl halide. Alkyl with halogen alkyl halide. In the presence of anhydrous LCl3, ये वाला लुईस एसिड रहेगा without water, aluminium chloride. So alkyl benzene, it gives a toluene. In this reaction we discuss CH3 plus AlCl3. why we are using, ये वाला लुईस एसिड रहता है, सो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्टेड रहता है, सो मिथाइल और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन करेगा,
सो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल CH3Cl react with LCl3, so it gives us इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है. देन ये वाला क्लोराइड इसके साथ कनेक्टेड होके कॉम्प्लेक्स दे रहा है. सो CH3 प्लस यहाँ पे अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर और ये वाला हाइड्रोजन SH प्लस रिमूव हो जाएगा. यहाँ पे CH3 प्लस ऐड हो रहा है. सो इट गिव्स अ टॉल्यूइन. C6H5CH3 इस टॉल्यूइन. यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है. सो अल्काइलेशन. ये वाला मिथाइल बेंजीन, फेमस नेम इज टॉल्यूइन. यहाँ से जो H प्लस रिमूव हुआ वो टेम्पररी कनेक्टेड क्लोरीन यहाँ पे था, उसके साथ अटैच होके HCl बन जाएगा और AlCl3 वापस मिल जाएगा. इन शॉर्ट वी कैन से CH3 प्लस एंड Cl माइनस. CH3 प्लस यहाँ पे कंबाइन हो गया. यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो जाएगा. सो विथ क्लोरीन एज HCl, AlCl3 एज इट इज रिमेनिंग रह जाएगा. ऐसे भी याद रख सकते. डियर स्टूडेंट्स, नाउ रिएक्शन विथ इथाइल क्लोराइड. ये वाला इथाइल क्लोराइड यहाँ पे भी देख सकते इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होगा और बेंजीन रिंग की ओर यहाँ पे भी हाइड्रोजन यहाँ कोई भी 6 में से 1 रिमूव हो सकता है. सो यहाँ पे C2H5 मीन्स CH2CH3 ये वाला इथाइल अटैच हो जाएगा. इथाइल बेंजीन फॉर्म हो जाएगा. यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, ऐसे HCl बाय प्रोडक्ट दे रहा है. सो ऐसे अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है. सो दिस इज अल्काइलेशन. वी कैन फॉर्म बेंजीन, टॉल्यूइन फ्रॉम बेंजीन, ethyl benzene from benzene. Now one question is asked in our book. You can see why do we get isopropyl benzene treating with 1 chloropropane when we take benzene, okay, and react with 1 chloropropane. So you can see ये वाला 1 chloropropane हो गया. As it is our catalyst is LCl3. So ये वाला isopropyl benzene दे रहा है. ये वाला isopropyl benzene instead of normal propyl benzene. Actually ये वाला normal propyl benzene होना चाहिए, but ये नहीं दे रहा है. Why? This type question is asked. बेंजीन क्लोरोमीथेन के साथ अटैच हो रहा है, सो ऑब्वियसली टॉल्यूइन देगा. क्लोरोइथेन में क्या रहता है, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा. सो ये वाला प्राइमरी केटायन हो जाएगा. यस, पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज अटैच विथ अनदर वन. ये वाला पॉजिटिव. इफ यहाँ से यहाँ पे केटायन बन रहा है, सो ये वाला भी प्राइमरी रहेगा. सो प्रोडक्ट चेंज नहीं रहता, प्रोडक्ट सेम रहता है. इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन, ये प्लस ये माइनस. ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन प्राइमरी रहता है, ये वाला प्राइमरी, बट ये वाला सेकेंडरी रहता है. सो वी डिस्कस अबाउट इट. इंस्टेड ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल रहता है. यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन हुआ Cl-N. ये वाला प्राइमरी कार्बोकेटायन है. इसमें क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा है. यू कैन सी यहाँ पे 1 वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके पास वाला कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ रहा है. ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके शिफ्ट हो रहा है.
ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके जा रहा है, सो ये पॉजिटिव हो गया। और इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, प्लस माइनस कट। सो ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। इंटरनल चेन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला 1 क्लोरोप्रोपेन था, सो ये वाला केटायन हो गया, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये नॉर्मल प्रोफाइल हो गया, बट ये प्राइमरी कार्बोकेटायन रहता है। पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, तो उसका स्टेबिलिटी क्या है, लेस रहता है। सो हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा और पास वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, H- शिफ्टिंग हो रहा है, और ये वाला सेकेंडरी मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो यहाँ पे नॉर्मल प्रोफाइल वाला पार्ट नहीं, बट ये वाला आइसोप्रोपाइल पार्ट अटैच होगा। सो इट नॉट गिविंग नॉर्मल प्रोफाइल बेंजीन बट गिव्स ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन देगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन के साथ, ऐसे HCl रिमूव होगा। यस, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी जब भी ऐसा होता है तब वी हैव टू थिंक अबाउट इट, प्रोडक्ट क्या दे रहा है। नाउ आई होप you enjoyed my lecture and like my video. Now bye, we will meet in our next lecture.